welcome dear all. Today after a long gap, that is after the long lockdown, I am again coming, in fact we are coming with a new series of videos in the channel The PSM Couple. So starting from the practical point of view, today I am going to just let you know all the pre-final students, the second year student, and as according to the NMC, a lot of topics have been varied in the practicals of community medicine. So starting with, I would like to tell you that now accordingly the practical is divided into 3 steps. That is, you will have the OSPI and OSCE part also, the biostatistics and the epidemiology part, and third number you will have the spots as usual, and lastly you will have the viva. So every section will be consisting of 20 marks each, right? So starting with the biostatistics part, okay? So in the biostatistics, usually if it is of 20 marks, it will include both biostatistics and the epidemiological exercises, right? So biostatistics, we'll have the main questions. Please take a copy and pen always and try to jot down, okay? So here in this video, I'm just giving the questions to you regarding the practicals for the students of MBBS third year, right? So number 1 in the biostatistics, it will include the mean, the median, the mode, the standard deviation, the chi-square test, the student's t-test, right? Again I am saying the mean, median, mode, chi-square test, standard deviation and the t-test, right? Then you will have certain epidemiological exercises, okay? So epidemiological exercises will include all the mortality rates, all the morbidity rates which are given in the chapter of epidemiology, that is chapter 3rd of the PARC, okay? Then chapter number 4 consisting of sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value. These are the questions which can come from chapter number 4, that is screening of disease. Then coming to the next one, that is the mortality of that MCH chapter. If you come to the MCH chapter, that is maternal child health preventive geriatric chapter, so the mortality, different types of mortality, that is the maternal mortality, the infant mortality, okay, under 5 mortality, so all those mortality indicators given over there. Then coming to the demography chapter, it will have the fertility indicators or the fertility rates. From that also you have to jot down and learn all the formulas. Any question can be asked, okay? Then if you come to the chapter where communicable diseases, malaria is given, the disease malaria is given. So malaria, it will consist of the indices for malaria, that is annual parasite incidence, annual blood examination rate, the slide positivity rate, etc., right? So these are very important things which will be occurring in the biostatistics and the epidemiological exercises part. So my kind request is to all the students कि आप सारे formulas, ठीक है, जितने भी formulas हैं, जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं, आप इसको एक लिस्ट बना लीजिए और जहाँ ब्रश करते हैं ना, वहां पर आप इसको टांग लीजिए. तो every day when you will see the formulas, ऑटोमेटिकली दे विल गो इन योर माइंड. और बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजिकल एक्सरसाइजेस का पार्ट, बेस्ट पार्ट यही है कि आंसर आए ना आए, आपको फॉर्मूले के मार्क्स जरूर मिलते हैं. सो गो विथ इट, राइट? कमिंग टू द स्पॉटिंग पार्ट, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पॉट्स, द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जो कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई ना कोई कभी ना कभी पोस्टिंग में पढ़ाता है आपको, ओके? दैट इज द इम्यूनाइजेशन पार्ट एंड द कोल्ड चेन पार्ट, वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ओके? सो फॉर दैट यू मस्ट बी नोइंग द शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ओके? एंड these are given in details. The spotting which I could make, okay, and which I could detect with the help of videos are given in my channel already during the time of lockdown. So here just we are noting, so I would not like to go in details, right? But I am always available for your queries. So number 1, the vaccine part, you will have the BCG vaccine, the DPT, the oral polio, the hepatitis B,
pentavalent vaccine, then you have the measles rubella vaccine, you have vitamin A solution, the rotavirus vaccines, okay, tetanus toxoid, then you have the DPT booster as I also already mentioned, and you will also have COVID vaccines also, okay, and in pregnancy also you need to know about the tetanus toxoid. So all the things vaccines के लिए जो common question रहेगा वो ये रहेगा कि उसका डोज क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और यदि उसमें कोई स्ट्रेन है तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन्स के लिए ये क्वेश्चन फिक्स है, जो 2004 से तो मैं ही देख रही हूँ, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक फ्लोइंग लाइक दैट, फ्लोइंग लाइक द वाटर इन द ओशन, राइट। सो वैक्सीन्स वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ, द डोज, उसका रूट, उसका शेड्यूल इम्यूनाइजेशन में, और उसका स्ट्रेन यदि कोई अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंट्रासेप्शंस। कंट्रासेप्शंस एज यू नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कंट्रासेप्शंस में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि बैरियर मेथड्स मतलब स्पेसिंग मेथड्स कौन से हैं और टर्मिनल मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। फिर इसमें सारे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्लासीफाई द कंट्रासेप्शंस एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया यहाँ पे आपको। एंड द कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट ये है कि सबसे पहले कॉन्डम आता है, सेकेंड नंबर पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और थर्ड नंबर में आता है आपका कॉपर टी। तो इंट्रा यूट्राइन में आ गया, एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होगा, जब तुम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, है ना, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो लिपीज लूप हो, चाहे डायफ्राम हो, चाहे स्पंजेस हो, चाहे टर्मिनल मेथड्स में आपका ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी हो, पढ़ना सारे पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि क्लासीफाई करो और सबका एक एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। लेकिन फॉर द स्पॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई एम सीइंग द पैटर्न, ये जो 3 बताए आपको, कॉन्डम, कॉपर टी और ओसीपी, इस 3 का आपको शेड्यूल पता होना चाहिए, आपको डोज पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज। समझ में आया, इसका शेड्यूल क्या है, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है, कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एक्सेट्रा। जैसे कॉन्डम का हमेशा पूछते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, किस मटेरियल का बना है, तो वो लेटेक्स का बना है। ओसीपी पे आएंगे तो उसका कंटेंट पूछेंगे, फिर वो शेड्यूल पूछेंगे कि 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिया, 21 दिन तक लिया, 7 गोली आयरन की थी, 1 गोली स्किप हो गई तो क्या क्या होगा। सब्सिक्वेंट वीडियोस में आप देखेंगे और आपने कुछ पुराने में देखा भी होगा। कॉपर टी में कॉमन क्वेश्चन, एडवांटेज डिसएडवांटेज और आइडियल कैंडिडेट फॉर कॉपर टी, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत स्कोरिंग होते हैं और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रासेप्टिव। कमिंग टू इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स में आपका डीडीटी, पैराथियन, मैलाथियन और बीएचसी, डीडीटी, पैराथियन, मैलाथियन और बीएचसी। तो इसमें आपको और वो है डाइक्लोरोवॉस 5वें नंबर पे, ठीक है। ये ऐसा कि ऐसा पूछा जाता है हमेशा, फुल फॉर्म जिसका है वो पूछेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका डोज, ठीक है, और टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, मैकेनिज्म, डोज और टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो ये हो जाएगा आपका इंसेक्टिसाइड वाला पार्ट एकदम क्लियर, ठीक है, समझ में आया। जैसे डीडीटी है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फिर 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर फीट इसको डालते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस है कि ऑर्गेनोक्लोरीन है, और इंसेक्टिसाइड के कहाँ पे एक्ट करता है, सीएनएस पे, स्टमक पे, कोई सा भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू हैव टू आंसर इन द इंसेक्टिसाइड पार्ट। फिर हम आते हैं अपने मॉडल्स पे, ठीक है। तो मॉडल्स, इन्वायरमेंटल मॉडल्स, तो सबसे पहला होता है स्लो सैंड फिल्टर, फिर होता है रैपिड सैंड फिल्टर, फिर होता है सेप्टिक टैंक, सैनिटरी वेल और इन सैनिटरी वेल। ये 5 जो हैं ये बहुत कॉमन है, ठीक है। सेप्टिक टैंक, सैनिटरी वेल, इन सैनिटरी वेल, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। सारे मॉडल्स का डायमेंशन या पैरामीटर पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और कोई एडवांटेज है तो वो, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे सेप्टिक टैंक का फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करता है 2 स्टेप में, ठीक है, वो डिटेल में आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
या फिर स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर है तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वेल है तो उसका पैरापिट या फिर बाउंड्री क्या है. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू. और एक ना एक मॉडल हमेशा हर बैच को फंसता है. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंटेमोलॉजी. एंटेमोलॉजी में जो हमारे यहाँ पैटर्न चला आ रहा था, आई एम जस्ट टेलिंग दैट हो सकता है किसी कॉलेज में इससे प्लस माइनस बताया जाता हो, एज दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कॉलेजेस. ठीक है. तो पहले नंबर पे हमारे आ गए मस्कीटोज. तो मस्कीटोज में हमारे यहाँ पे हमेशा एनोफ्लीज मेल फीमेल और क्यूलेक्स मेल फीमेल दिखाया जाता है. ठीक है. और एडीज का स्लाइड एक्चुअली वी डोंट हैव, सो आई वोंट से, बट यदि आपके कॉलेज में है सो यू कैन स्टडी दैट. सेकेंड नंबर पे आता है हाउस फ्लाई. थर्ड नंबर पे आता है साइक्लोप्स. फिर आता है टिक्स. टिक्स में दोनों है हमारे पास, हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक. और लास्ट नंबर पे आता है हेड लाउस. ठीक है. तो इनके क्वेश्चन सब आप नोट कर लो. स्लाइड तो यही रहेगी जो पहचानने के लिए आएगी. ठीक है. देन आपको इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर लिखना पड़ेगा, आपको इसका डिजीज लिखना पड़ेगा और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं. आप देखो एंटेमोलॉजी लेने के भी दो तरीके हो गए. या तो वो लोग सही में स्लाइड दिखाते हैं और आपको पहचानना होता है सही में, सही की स्लाइड. ठीक है. या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको डिस्प्ले कर दें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. ठीक है. तो यदि वैसा कर रहे हैं तो इट बिकम्स मोर इजियर फॉर यू. पर सपोज पहचानने को आ गया तो एक एक की पॉइंट आपको हर स्लाइड का पता होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन यू इन फ्यू सेकेंड्स. ठीक है. साइक्लोप है, पियर शेप का ऑर्गेनिज्म रहता है. पियर मतलब ऐसा ओवल टाइप का और एक टेल रहती है. ठीक है. छोटा सा दिखता है, टाइनी. दो साइक्लोप भी हो सकते हैं. पियर शेप का दिख रहा है, पिंक कलर का स्टेनिंग है और एक पतली सी टेल दिख रही है तो वो साइक्लोप है. ठीक है. फिर ओवल शेप लंबा है, बॉडी सेगमेंटेड है तो वो हेड लाउस है. ठीक है. ओवल शेप है लेकिन ब्रॉड हो गया तो वो टिक हो गया. हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसे विंग्स दिखेंगे उसके साइड में. ठीक है. तो वो हाउस फ्लाई हो गया. फिर मस्कीटो में थोड़ा टिपिकल होता है कि एंटीना देखोगे, बुशी है, नॉन बुशी है और मेल फीमेल का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना होगा. ठीक है. तो इसमें डिजीज लिखना है, आइडेंटिफिकेशन लिखना है और उसका प्रिवेंशन लिखना है. तो ये एंटेमोलॉजी का स्लाइड भी जो आएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा ये भी सबसे पूछा जाएगा. ठीक है. इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सी बैच में हूँ, मेरा नाम आखिरी में आता है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. दिमाग में बिठा लो कि एंटेमोलॉजी की एक स्लाइड करना है यदि पीएसएम का प्रैक्टिकल दे रहे हो तो. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज पब्लिक हेल्थ लैब. पब्लिक हेल्थ लैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और इसका डिटेल वीडियो हमारे पीएसएम चैनल पे दिया गया है. डॉक्टर मयंक ने इसको बहुत अच्छे से बताया है. ठीक है. तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आते हैं. ठीक है. जैसे कि काटा थर्मोमीटर, ग्लोब थर्मोमीटर, ठीक है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, सॉल्टर्स बेबी विंग स्केल हो गया, ईयर मफ्स हो गए. ठीक है. उसके बाद में आपका गॉगल्स हो गए, हेलमेट हो गया. ठीक है. शाकिर स्टेप हो गया, ग्रोथ चार्ट हो गया. तो ये पब्लिक हेल्थ में जो चीजें हमें हेल्प करती हैं जब हम फील्ड पे जाते हैं कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, तो वो सारी चीजें आती है पब्लिक हेल्थ में, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स में या वो भी जो भी कह लो. ठीक है. तो इसमें आपको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को पहचानते आना चाहिए और उसके यूजेस पता होने चाहिए. ठीक है. दो ही क्वेश्चन आते हैं कि इसको पहचानो, वहां पे पहचान नहीं लिखी रहेगी, तो इसको पहचानो और इसके यूजेस लिखो. आ गया समझ में. कमिंग टू द नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट में आपके ड्रग्स आ गए या मेडिसिन आ गए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो ड्रग्स में सबसे पहले टीबी की ड्रग्स सुनते आ रहे हो काफी समय से, लाल पत्ता, नीला पत्ता, छोटा है तो इंटेंसिव फेज, बड़ा है तो कंटिन्यूएशन फेज, हमेशा से सुनते आ रहे हो. दो कैट हैं, कैट 1, 2. एंटी-ईपी प्रोग्राम भी आ गया है तो ड्रग का थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, बाकी कैटेगरी वही है. ठीक है. तो टीबी के ड्रग्स हो गए डॉट्स, दैट इज डॉट्स. डेप्सोन हो गया लेप्रेसी के लिए. क्लियर है. देन यू हैव एंटी मलेरियल ड्रग्स. ठीक है. फिर ORS. ठीक है. ORS भी ठीक है. टीबी हो गया, डेप्सोन हो गया लेप्रेसी के लिए, फिर आपका ORS हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गया. ठीक है. ये सब चीजें जो हैं, और आयरन फॉलिक एसिड फॉर प्रेगनेंसी, सबका डोज और साइड इफेक्ट
शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रेगनेंसी है तो आयरन फॉलिक एसिड कब देंगे, इसका डोज क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही सब्सिक्वेंटली फॉलो होता है। ORS का पैकेट है तो पैकेट बेटा वहां नहीं रखा रहेगा, ठीक है। कंटेंट जो होते हैं उसके कि उसमें क्या क्या होता है तो याद करके ही आना पड़ेगा। एंटी मलेरिया में क्लोरोक्विन रख दिया, शेड्यूल और डोज बताना पड़ेगा। प्राइमाक्विन रख दिया, शेड्यूल और डोज बताना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया में बताओगे तो और अच्छा है। टीबी की ड्रग्स रख दी कोई भी, कैट 1 कैट 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद में आपका लास्ट ये है कि मिसलेनियस कुछ बचते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में आपसे ग्रोथ चार्ट को प्लॉट करने कह दिया, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दिया वाटर केमिस्ट्री का, ठीक है, जैसे कि हॉरक्स एपरेटस पूरा रख दिया, आइडेंटिफिकेशन उसका पूछ लिया। ऑर्थोटोल्यूडेंट टेस्ट करते हैं अपन पानी के लिए, ये वाटर केमिस्ट्री वाला पार्ट है विच आई एम टेलिंग। तो उसमें ओटी की वो जो अपना कलर मैचिंग के लिए टेस्ट ट्यूब्स होते हैं वो रख दिए, तो ये आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। वाटर केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्योंकि 2 चीजें हैं जो बताते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो क्लोरीन डिमांड देखते हैं, ठीक है, और एक हार्डनेस ऑफ वाटर देखते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइजेस, जो कि हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिटेल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वाटर केमिस्ट्री वाले पार्ट में नोट कर सकते हो हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड्स इन द गिवन सैंपल ऑफ वाटर। 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका हॉरक्स एपरेटस का पूरा फंक्शनिंग बताना। वो 6 कप रहते हैं ना, सफेद और काला, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग अमाउंट में अपन डालते हैं और डिमांड देखते हैं अपन, ठीक है, क्लोराइड्स की। तो हॉरक्स एपरेटस हो गया। फिर ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट, ठीक है, फ्री क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन के लिए जो करते हैं OTA टेस्ट, तो वो कैसे करते हैं। तो ये वाटर केमिस्ट्री में 4 चीजें आपको पता होना चाहिए, OTA टेस्ट, हॉरक्स एपरेटस, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस और एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लियर है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द न्यूट्रिशन पार्ट। न्यूट्रिशन पार्ट में ऐसा है कि हर कॉलेज में ये भी अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फॉलो होता है दैट इज कुछ ग्रेन्स हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, उसके बाद सोयाबीन हो गया। प्लीज नोट डाउन, वीट, राइस में व्हाइट राइस भी होगा, पार बॉइल्ड राइस भी होगा, ठीक है। फिर सोयाबीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके ये हो गए राजमा हो गए, ग्राउंडनट हो गया, उसके बाद आपका जैगरी हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हो गए, घी, बटर एक्सेट्रा हो गया। तो सारी चीजों का एक कॉमन नटशेल में क्या पूछते हैं, किलो कैलोरीज कितना है, प्रोटीन्स कितना है और कौन सा अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है। जैसे कि दाल वाली रेंज में जाओगे तो दाल वाली रेंज में 300 350 तक मिलेगी कैलोरी, ठीक है। चावल में उससे ज्यादा रहेगी। प्रोटीन पार्ट देखोगे तो दाल में ज्यादा रहेगा। लाइसिन आइसोल्यूसिन वाला जो पार्ट रहता है अमाइनो एसिड वाला, तो वो वाला कौन सा प्रेजेंट है दाल में, कौन सा एब्सेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1-2 चीजें हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, एग हो गया, तो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे डिटेल्ड उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कुल मिला के लोगों का ये अक्सर क्वेश्चन होता है, बच्चे आते हैं मेरे पास, मैडम कैलोरी कैसे याद होगी। तो बेटा इसके लिए एक कॉमन आपको रेंज याद रखना पड़ेगा कि दाल है तो उसमें कितना हो सकता है, कौन सी रेंज में जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। चावल है तो किस रेंज में जा रहा है, जैगरी है तो एकदम अलग हो जाएगा, सोयाबीन है तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं कि प्रोटीन कंटेंट हो गया, देन कैलोरीज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव पार्ट है जिसमें कैलोरी और प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं और अमाइनो एसिड की। 2 क्वेश्चन अडल्ट्रेशन वाले पार्ट से बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अलग से स्टार लगा के लिख लो। एक है केसरी दाल और दूसरा है आर्जिमन सीड्स। केसरी दाल, केसारी दाल भी बोलते हैं, और आर्जिमन सीड्स, ठीक है। तो इस 2 क्वेश्चन में कॉमन क्वेश्चन है कि एक तो ये इसमें टॉक्सिन कौन सा है, दूसरा इसकी बीमारी कौन सी होगी क्योंकि टॉक्सिन मिला हुआ है, और तीसरा उस बीमारी का प्रिवेंशन है। ये क्वेश्चन भी हर बैच को ऑलमोस्ट फंसता है इसमें, अडल्ट्रेशन वाला पार्ट क्योंकि है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी हमारा ओवर हो गया। एंड आजकल हम लोग BMI कैलकुलेशन करा रहे हैं, तो BMI कैलकुलेट करके सबको आता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो BMI अपना खुद का भी निकालने को दे सकते हैं और किसी और का पैरामीटर्स दिया है तो निकालते आना चाहिए और यूनिट्स प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द हिस्ट्री टेकिंग पार्ट। तो हिस्ट्री टेकिंग पार्ट जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं या कम्युनिटी एस्पेक्ट से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग कॉमन हिस्ट्री तो बोर्ड में लिया ही, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन एंड नॉर्मल चीजें जो पूछते हैं वो आप सबको पता है, नाम, एज, जेंडर, पता, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी उसका कितना है। फिर फैमिली चार्ट बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स रहता है और सबकी एज रहती है, रिलेशन टू हेड ऑफ द फैमिली रहता है और वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं या ऑक्यूपेशन है कुछ, ठीक है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में आ गया उसका डाइटरी चार्ट। डाइटरी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो तरीके से आप ले सकते हो। एक तो ये पूछ सकते हो जो आदमी आपको हिस्ट्री दे रहा है उससे आप पूछ सकते हो कि भैया 24 घंटे में क्या क्या आप खाते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपने नोट कर लिया सब। या फिर आप राशंस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 मेंबर हैं तो उसको महीने का कितना राशन लग जाता है, रॉ में कि गेहूं कितने लग जाते हैं, दाल चावल कितना रख जाता है, वीकली लाता है कि मंथली लाता है, उस हिसाब से। तो राशंस के हिसाब से भी नीट पता लग सकती है। देन कमिंग टू द ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है यदि कोई प्रेग्नेंट है तो, ठीक है, कि तीनों ट्राइमेस्टर उसके कैसे थे, नहीं थे, यदि रिसेंटली कंप्लीट हुई है प्रेगनेंसी या जब आप गए हैं तो प्रेग्नेंट है। फिर टिटनेस का टीका लगा या नहीं लगा, ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री का भी चार्ट बनता है, यदि कोई अंडर 5 बच्चा है या 5 साल तक का है तो उसका कार्ड देख लोगे और कार्ड से पता लगा के लिख लोगे कि इसका इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, 5 साल तक के सब टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आप बात करेंगे तो कोविड वैक्सीन क्योंकि आ चुके हैं, ठीक है, और लग चुके हैं अपने यहाँ सारे लोगों को, तो वो भी पूछ लेना फैमिली में जाओगे तो। फिर कोई एडिक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई सोशल प्रॉब्लम्स तो नहीं है फैमिली में। सोशल प्रॉब्लम्स मतलब पॉवर्टी हो गया, ठीक है, कोई डिजीज हो गई कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, या कोई डाउरी सिस्टम हो गया, या कोई ड्रग एडिक्शन हो गया, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एक्सेट्रा। सोशल प्रॉब्लम्स भी लीड करते हैं बहुत सारे डिजीजेस को, इसलिए हमें पूछना जरूरी है फील्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, हाउसिंग वाले पार्ट में। तो जैसे ही आप घुसेंगे तो पहले ये देखेंगे कच्चा है पक्का है, कई बार टीन शेड ऊपर लगा रहता है नीचे पक्का रहता है, तो पूरा हाउस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कैसा बना हुआ है हाउस, उसका फ्लोर कैसा है, उसका रूफ कैसा है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, कोई उसमें मस्कीटो या कोई ब्रीडिंग साइट्स तो नहीं है इंसेक्ट्स की, क्योंकि वो बीमारियां कराएंगे। घर के पीछे चले गए, कचड़े का पूरा वो लगा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है सब समेट के एक साथ, तो ब्रीडिंग साइट्स होंगी तो डिजीजेज होंगी, ठीक है। कोई एनिमल्स तो नहीं है घर के अंदर रहते हैं, बकरी है, ठीक है, डॉग्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो उनके कॉमन एरिया में बैठते हैं जाके, ठीक है, तो उससे जूनोटिक डिजीज का रिस्क रहता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट दैट, ठीक है। किचन में देखोगे कि किचन वेस्ट को वो कहाँ फेंकते हैं, कहाँ डिस्पोज करते हैं, ठीक है। फिर पानी आता है तो पानी कौन सा आता है, बोरिंग का आता है या गवर्नमेंट के नल का आता है, और उसको स्टोरेज करके कैसे रखते हैं और यूज करते हैं तो छान के करते हैं या बॉईल के करते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव में अभी भी बहुत सारी जगह पे यही कॉमन सोर्स है। आप सबके घर में आरओ लगा होगा 80% लोगों के यहाँ पे, पर पहले ये सब सिस्टम नहीं था, तो वी नीड टू सॉर्ट आउट कि भैया क्या क्या चीज़ें वो लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर कुक्ड फूड है, अनकुक्ड फूड है, उसका स्टोरेज कैसा है, क्या है, ये भी, ठीक है। तो ये चीज़ हाउसिंग से रिलेटेड हो गई, पानी से रिलेटेड हो गई, किचन में एलपीजी है या चूल्हा अभी भी है वो हो गया, टॉयलेट फैसिलिटी घर में अवेलेबल है या अभी भी गवर्नमेंट वाले में जाते हैं या पड़ोसी वहाँ पे बने हुए रहते हैं जो कॉमन टॉयलेट्स वो यूज़ करते हैं, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जैसे छोटी मोटी इलनेस होती है तो उनके पास नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। और दूसरा यदि है तो क्या वो उसको यूज़ करते हैं कि अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लिया कि ये बुखार आया खुद ही दवाई लाए स्टोर से और खा ली, ऐसा है। तो कुछ लोग बताएंगे हमारे घर के पास बंगाली डॉक्टर हैं, हम तो वहीं जाते हैं कुछ भी होता है। कुछ बताएंगे क्योंकि आप जिस भी कॉलेज से होंगे तो वो उसका नाम लेंगे कि हम वहाँ से आए हैं, हमारी फैसिलिटी वही है, वहीं जाते हैं, कुछ भी होता है। तो हेल्थ फैसिलिटी का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने एक स्टडी करी थी 2014-15 में, तो उसमें बताया गया था कि मोर देन 70% पीपल आर डूइंग सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, विदाउट द मीन्स इन्वॉल्वमेंट और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनी
फॉर्म ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी हो, कुछ भी हो, किसी को कंसल्ट नहीं करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा विश्वास था लोगों का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो आपका बनेगा क्लिनिको सोशल डायग्नोसिस कहते हैं पीएसएम में, ठीक है। क्लिनिको सोशल डायग्नोसिस मतलब ही होता है कि उसमें पूरा बताया जाएगा कि कहाँ का कौन आदमी है, कितनी एज है, रहने वाला कहाँ का है, फिर उसके बाद फैमिली में कितने लोग हैं, और लास्टली उसका क्लिनिकल वो सोशल प्रोफाइल क्या है कि भैया कोई बीमारी नहीं है या कोई इंडेक्स केस है फैमिली में, मतलब किसी को पहली बार कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हुई है तो दैट इज इंडेक्स केस, और फिर दूसरों को यदि होने लगा तो सेकेंडरी केस भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग पार्ट, ठीक है। फिर कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज द ऑस्पी ऑस्की। तो देखो ऑस्पी ऑस्की में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वट एवर ऑस्पी ऑस्की आई कुड फाइंड आउट, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में अभी इसी साल से ऑस्पी ऑस्की पैटर्न चालू हुआ है, ठीक है। तो उसमें दे आर ट्राइंग टू शो पिक्चर्स ऑल्सो। ये रहेगा तो स्किल बेस्ड ही, कि जैसे आपको बीपी लेना पड़ सकता है, हाइट वेट लेके आपको बीएमआई निकालना पड़ सकता है, जनरल एग्जामिनेशन करके दिखाना पड़ता है, अनीमिया की साइट्स आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे अनीमिया हो सकता है, कोई जीरियाटिक पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कैसे लोगे, कोई एंटीनेटल है उसकी हिस्ट्री कैसे लोगे, वहाँ करके बताना पड़ेगा। कोई किसी को बिठा दिया उसकी न्यूट्रिशनल या डाइटरी हिस्ट्री लेने बोल दिया तो वो कैसे लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑस्पी ऑस्की मतलब स्किल बेस्ड है, आपको करना ही होगा कुछ ना कुछ। सॉल्टर्स स्केल टंगा है उसका रीडिंग बताना होगा, शाकिर स्टेप रखा है तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस नाप के उसको बताना। दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्पी ऑस्की दैट इज स्किल बेस्ड। या यदि स्किल हम नहीं भी दिखा पाए तो कुछ एक आध क्वेश्चन पिक्टोरियल भी हो सकता है, मतलब हमने आपको एक पिक्चर दे दिया, एक सिनेरियो दे दिया, यू नीड टू डिस्क्राइब दैट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट अभी एक ही एग्जाम्पल दूंगी। पूरा सिस्टम मैंने बना दिया कोल्ड चेन का, ठीक है, कि जहाँ वैक्सीन बनी वहाँ से प्रॉपर कहाँ कहाँ जा रही है, बस है, टेम्परेचर प्रॉपर है, फिर वहाँ मैन्युफैक्चर से उसका जहाँ डिस्पैच होना है वहाँ तक कैसे पहुँच रही है प्रॉपर टेम्परेचर में, इसका फोटो बना दिया। उस डायग्राम को तुमको डिस्क्राइब करना होगा कि ये कोल्ड चेन का है, और फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है। तो ऑस्पी ऑस्पी का एक अलग वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको बता पाए जो हमने डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा क्योंकि अभी ये कॉमन ट्रेंड या कॉमन पैटर्न नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट कमिंग टू इज द न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करते हैं बाय ए बी सी डी और ई, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी मेरे न्यूट्रिशन वाले वीडियो में डला है ऑलरेडी। ए से होता है एंथ्रोपोमेट्री, मतलब सारे मेजरमेंट्स कर लिए, हाइट वेट ले लिया, बच्चा है तो उसको उसके हिसाब से ले लिया, सॉल्टर से या एमयूएसी टेप से, बड़ा है तो नॉर्मल हाइट वेट ले लिया, ठीक है। फिर बी से होता है बायोकेमिकल टेस्ट, बहुत सारे जो हम करवाते हैं विटामिन के अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स और सबके। सी से होता है केमिकल एनालिसिस, डी से होता है डाइटरी असेसमेंट, और ई से होता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे कि तुमको बताया ना, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं जिसके कारण आदमी कम खा रहा है या उसको कोई डेफिशिएंसी हो गई, तो वो आते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स में या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। और डी से डाइटरी असेसमेंट, मतलब हम देखते हैं 24 आवर रिकॉल मेथड से, कल का हमने पूरा पूछ लिया उससे कि कल तुमने क्या क्या खाया था, ठीक है। फिर एक होता है कि हम उससे क्वेश्चनएयर मेथड से पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चनएयर मेथड से कैसे पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी चार्ट बना दिया कि भैया कौन से आइटम्स हैं कॉमन, वो नोट कर लिए और वहाँ पे लिख दिया कि वीक में कितनी बार खाता है, कि मंथ में खाता है, कि साल में खाता है, टिक लगाते गए कि फ्रीक्वेंसी चार्ट हो गया। और एक होता है रॉ मेथड और क्वेश्चनएयर मेथड, इसमें पूरा फैमिली का पूछा जाता है कि वही जो मैंने आपको उधर पे बताया था हिस्ट्री टेकिंग में, कि वो कैसे कैसे कितना कितना हर फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग टोटल वो तो बताएगा कि हम 3 लोग हैं, हफ्ते हफ्ते का 1 किलो आटा लेते हैं या 5 किलो लेते हैं, तो वो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग भी एक एनालिसिस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कभी भी आता है तो उस पर ABCDE याद रखना पड़ता है। तो आई थिंक मैंने प्रैक्टिकल का बहुत सारा एस्पेक्ट्स और बहुत सारे जो ये पूछते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं ये आपको आज नोट करा दिया है। बाकी कुछ वीडियोस मेरे ऑलरेडी पोस्टेड हैं PSM कपिल में, तो आप जाके देख सकते हो कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या और डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये कि
इसमें से भी यदि आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमेशा पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।